سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار، سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان مضبوط گواہ بن گئے۔ ایف آئی اے نے چالان آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں جمع کرا دیا، ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا کی گئی۔ تفصیلات دیکھیے فیصل عباس کی رپورٹ میں۔ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ عدالت میں چالان جمع کرا دیا۔ چالان میں بتایا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر اپنے پاس رکھا اور اسٹیٹ سیکرٹ کا غلط استعمال کیا۔ سائفر کاپی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس پہنچی لیکن واپس نہیں کی گئی۔ شاہ محمود قریشی نے 27 مارچ کی تقریر کی، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کی معاونت کی۔ ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی فہرست بھی چالان کے ساتھ عدالت میں جمع کرائی ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ بن گئے۔ اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک ہے۔ سیکرٹری خارجہ اسد مجید، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی بھی ایف آئی اے کے گواہوں میں شامل ہیں۔ اسد عمر کا نام ایف آئی اے ملزمان کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ نون لیگ نے اپنے ہی قائد کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو رد کر دیا۔ لندن میں نون لیگ کی اہم میٹنگ میں بڑا یو ٹرن، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور بیانیے سے گریز کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پارٹی مستقبل میں معاشی ایجنڈے پر فوکس کرے گی۔ نون لیگ کی پہلی ترجیح پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنا ہوگا۔ نون لیگ رہنما اسحاق ڈار لندن میں 2 ہفتے قیام کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔ نون لیگ نے اپنے ہی قائد نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کو رد کر دیا۔ نون لیگ کی لندن میں اہم میٹنگز میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور انتقامی سیاست سے گریز کا فیصلہ کیا گیا۔ لیگ نے موجودہ حالات کو انتقامی سیاست کا نتیجہ قرار دیا۔ لیگ کی قیادت اور رہنماؤں کے درمیان مستقبل میں مفاہمت کے لیے فروغ کا فیصلہ ہوا۔ صدر نون لیگ شہباز شریف، ملک محمد احمد خان اور دیگر رہنماؤں نے لندن میں نواز شریف سے اہم ملاقاتیں کی۔ نون لیگ کی قیادت نے لندن کی میٹنگز میں پارٹی بیانیے سے متعلق اہم فیصلے کیے۔ ذرائع کے مطابق میٹنگز میں اتفاق کیا گیا کہ پارٹی مستقبل میں انتقامی سیاست سے گریز، معاشی ایجنڈے پر فوکس اور پاکستان کے بڑے مسائل کے حل کے لیے مل کر چلے گی۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ کے بیانیے میں یو ٹرن کا صحرا نگراں وزیر اعظم کے لندن کے حالیہ دورے کے سر ہے۔ نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار لندن میں 2 ہفتے قیام کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا وطن واپسی کی تیاریاں جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کی پاکستان روانگی سے قبل عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف 4 سے 5 روز سعودی عرب میں قیام کریں گے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد دبئی پہنچیں گے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی ملکی سیاست سے الگ کرنے کی حمایت کر دی۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا اپنا ملک ہے، انہیں واپس آنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے 16 ماہ کی معیشت کو دلدل سے نکالنے کی کوشش کی۔ ملکی معیشت اور فیصلے اس وقت آئی ایم ایف کے ہاتھ میں ہیں۔ ایف آئی اے لاہور کی درخواست پر اسپیشل جج سینٹرل لاہور نے چودھری پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کی جانب سے مونس الہی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ واضح رہے کہ مونس الہی کو پچھلے چند ماہ سے متعدد بار سمن جاری کر کے عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جا رہا تھا، مگر مونس الہی غیر حاضر رہے۔ ایف آئی اے نے مونس الہی کے لاہور، گجرات، اسپین اور انگلینڈ کے ایڈریس پر عدالتی حکم نامے کی تکمیل کروائی لیکن وہ پھر بھی پیش نہیں ہوئے۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے حلقہ بندیوں میں آبادی کے تناسب کا معاملہ جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ فافن نے اپنی رپورٹ میں 180 حلقوں میں آبادی کا فرق 10% عمومی اجازت سے تجاوز قرار دے دیا۔ یہ فرق پارلیمنٹ سے منظوری مساوی رائے دہی کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ حلقہ بندیوں میں آبادی کے تناسب کے معاملے پر فافن نے جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ 180 حلقوں میں آبادی کا فرق 10% عمومی اجازت سے تجاوز ہے۔ اسمبلیوں کے 20% سے زائد حلقوں کی آبادی میں کمی بیشی کی شرح 10% کی قانونی حد سے زیادہ ہے۔ یہ فرق پارلیمنٹ سے منظور مساوی رائے دہی کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ فافن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن مجوزہ حلقہ بندیوں پر مقامی سطح پر اعتراضات وصول کرے۔ الیکشن کمیشن ادارہ شماریات کو آبادی کے تفصیلی اعداد و شمار جاری کرنے کی ہدایت کرے۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی رپورٹ اور حلقوں کی فہرستوں میں آبادی کا فرق پارلیمان کی منظور ترمیم کے تحت نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 11 قومی اسمبلی کے حلقوں میں سے 6 خیبر پختونخوا، 3 پنجاب، 2 سندھ میں ہیں۔ صوبائی اسمبلی کا 1 حلقہ 1 سے زائد اضلاع کے علاقوں پر مشتمل ہے۔
10% से ज्यादा आबादी के फर्क वाले हलकों की तादाद 2022 की हल्का बंदियों से भी बढ़कर है। इलेक्शन कवायद को हालिया तरमीम के मुताबिक अपडेट न करने के बाइस आबादी की अदम मसावत सामने आई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने अपील की है कि इलेक्शन कमीशन मुजव्वजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने के अमल को आसान बनाए। आलमी मालियाती इदारे ने FBI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF और FBI के दरमियान ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से IMF को बताया गया कि निगरान हुकूमत के दौरान कोई नया टैक्स नहीं लग सकता। ज़राए के मुताबिक FBI ने रवां माली साल के पहले 3 माह में हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा किया। FBI ने रवां माली साल के पहले 3 माह में 2.1 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा किया, जबकि 3 माह में टैक्स वसूलियों का हदफ 1.98 ट्रिलियन रुपए रखा गया था। ज़राए का कहना है कि FBI ने टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी IMF को आगाह कर दिया है। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिलने का इम्कान है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज होगा। और अगर आज शाम तक नई असम्बली वज़ारत ख़ज़ाना को भेजेगा, वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद रात 12 बजे नई कीमतों का ऐलान होगा। हुकूमत का सर्दियों की आमद से कबल ही अवाम को बड़ा सरप्राइज। ओगरा ने LPG मजीद महंगी कर दी। LPG की फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये 86 पैसे का इजाफा कर दिया गया। LPG के 11.8 किलोग्राम का सिलेंडर 246 रुपये पर 15 पैसे पर महंगा हो गया। LPG के 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 3079 रुपये मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को बरतानी वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। मस्तोंग और हंगो में दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत की। बरतानी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दाना हमलों में मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने इज़हार यकजहती पर बरतानवी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि हमलों में मुलव्विस ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाएगा। दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत अपने मौके से पीछे नहीं हटेगी। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी ने 12 रबीउल के दिन बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में खुदकुश धमाके में जांबाग होने वाले लवाकिन और जख्मियों के लिए कौम से इमदाद की अपील कर दी। मौलाना बशीर फारूकी का कहना है कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहा है। अफगान हुकूमत पर दबाव डालने और अफगानिस्तान में TTP के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तानी हुकूमत का दबाव काम कर गया। अफगान तालिबान ने चित्राल हमले में मुलव्विस 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। TTP को पाकिस्तान की सरहद से दूर मुंतकिल करने के अमल का भी आगाज कर दिया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द चित्राल हमले में मुलव्विस थे। अफगान तालिबान सरबराह का कहना था कि किसी को भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान हुकूमत की TTP के खिलाफ इक़दामात पर पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती पॉलिसी का नतीजा है। निगरान वज़ीर से डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि गैर मयारी इंजेक्शन के मामले में डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ शामिल होने का इंकशाफ हुआ है। वेस्टर्न इंजेक्शन गैर मयारी पैकिंग और गैर मयारी तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। देखते हैं इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट। लाहौर के निजी होटल में VC कॉन्फ्रेंस में निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और वजीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर नासिर जमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां पाकिस्तान को खरीद सकती हैं। ये एक माफिया है जिस पर काबू पा रहे हैं। कुछ हॉस्पिटल्स जिनको अलाउड था, जिनको लाइसेंस थे कि वो इसकी रीपैकेजिंग कर सकते थे, लेकिन वो अपने मरीजों के लिए कर सकते थे अंडर द लॉ, वो इसको कमर्शियल बेसिस पे पूरे पंजाब में नहीं बेच सकते थे। वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जमाल नासिर ने कहा कि अगर इंजेक्शन में कोई मसला ना निकला तो फिर जो मुल्जमान इंजेक्शन को तकसीम करते थे वो गुनाहगार होंगे। किराए वाली जगह पर एविस्टन इंजेक्शन लोकल तरीके से तैयार किया जा रहा था। अगर तो वो टीका स्टरलाइज हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बंदे थे जो अपने सारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे बैठ के इसकी रीफिलिंग किया करते थे, वहीं कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रॉब्लम किया है। वज़रा ने मजीद कहा कि अगर रिपोर्ट आने के बाद एविस्टन इंजेक्शन के इस्तेमाल की इजाज़त मिली तो SOPs के मुताबिक होगा। 2005 से एविस्टन इंजेक्शन पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा था। कैमरामैन बाबर मुमताज़ के साथ इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़, लाहौर।
और अब ये जानिए, कच्चे के डाकू के खिलाफ सिंध और पंजाब मुत्तहद है। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कच्चे के डाकू के खिलाफ बैक बैक ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। फैसला किया गया कि जब पंजाब में ऑपरेशन शुरू होगा तो सिंध में भी ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा, ताकि कोई डाकू सिंध में और पंजाब से सिंध की हुदूद में दाखिल ना हो सके। ऑपरेशन में दोनों सूबों की पुलिस और दीगर एजेंसियां एक दूसरे से रिपोर्ट भी शेयर करेंगी। निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से कराची के इलाके जहांगीर रोड, क्लैटन क्वार्टर और मार्टर रोड के मकानात को गिरा कर नए फ्लैट बनाने की समरी को हतमी शक्ल दे दी गई है। ताहम इलाका मकीन कहते हैं ये विफाकी ज़मीन है, सिंध हुकूमत का क्या लेना देना। ये मकान सरकारी तौर पर हमारे नाम है, कोई कैसे इनको खाली करा सकता है। मेरे दादा के नाम था ये मकान। 70 साल तो मुझे हो गए, 70 साल। इससे पहले मेरे वालिद का नाम था मकान, उससे पहले मेरे दादा के नाम था मकान। सन 1965 से यही सुन रहे हैं कि ये फलां आगा खान ने ले लिया ज़मीन, ये उसने ले लिए, ये उसने ले लिए। कुछ भी नहीं होगा। 65 साल की उम्र में मैं यही देखता आ रहा हूँ, हर साल यही होता है, क्या टूटे अब टूटे, कुछ भी नहीं हो रहा। 70 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, मगर हर दफ़ा हमने देखा हर इलेक्शन से पहले जो है ना ये सियासत चमकाई जाती है इसी तरीके से, यही बातें करके। भाई फ्लैट नहीं बने तो अच्छा है, अगर फ्लैट बनेंगे यहाँ पे ये होना बिजली का मसला है, पानी का मसला है, गैस का मसला है, रोड का मसला है। भारत खेल में सियासत लाने से बाज न आया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और फैंस को वर्ल्ड कप से दूर रखने की कोशिश। भारतीय हाई कमीशन ने ताहाल वीज़ा और दरखास्तें वसूल नहीं की हैं। पीसीबी का कहना है कि सहाफ़ियों को अभी तक वीज़े जारी नहीं हो सके। आईसीसी वीज़ों के इजरा में अपना किरदार अदा करे। वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। वीज़ों के इजरा में ताख़ीर सहाफ़ियों और फैंस के लॉजिस्टिक मसाइल में इजाफा होगा। पाकिस्तान के पहले वार्म अप मैच के हवाले से कौमी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान का कहना है, वार्म अप मैचेस का मकसद होता है जहां आपको बेहतरी की ज़रूरत होती है वो आप अप्लाई करें। इस मैच में बहुत सी नई चीज़ें करने की कोशिश की। न्यूजीलैंड ने 346 ज़रूर चेज़ किया, मगर हमारी तरफ से शाहीन ने बॉलिंग नहीं की। हारिस ने 6 ओवर किए, शादाब और इफ्तिखार ने ओवर नहीं किए। बैनुल-अक़वामी खबर शाम करें, आपको बताएं कि न्यूयॉर्क न्यू कराची बन गया। शदीद बारिश ने तबाही फेर दी, हर तरफ पानी ही पानी, गाड़ियां डूबी हुई हैं, ट्रैफिक जैम है। दर्जनों फ्लाइट्स मुअत्तल हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का खदशा जाहिर किया है। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में इतनी बारिश बरस गई जितनी एक माह में होती है। न्यूयॉर्क सिटी पानी पानी हो गया। न्यू जर्सी में भी कई फीट पानी जमा है। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई हैं, लाखों मुसाफिर रुल गए हैं, शहरी परेशान हैं, दरिया उबल गए, सब वेज भी पानी से भर गए। न्यूयॉर्क सिटी में इमरजेंसी नाफिज है। ब्रुकलिन में सैलाब आ गया है। मैनहट्टन में पानी के बाद शदीद ट्रैफिक जैम है। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर 8 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। दर्जनों फ्लाइट्स भी मुअत्तल हो गयी। नेशनल वेदर फोरकास्ट सर्विस का कहना है कि बारिश का सिलसिला थमा है, लेकिन रुका नहीं। वीकेंड पर मजीद तूफानी बारिश हो सकती है। कराची के चिड़ियाघर में 8 साल के बाद बैनुल-अक़वामी तर्ज के फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह हो गया। तज़यीन और आराइश के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह किया। कहते हैं कि तफरीही मकामात की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। असगर अजीम की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उज़्मा कराची का शहरियों को एक और तोहफा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने चिड़ियाघर में बैनुल-अक़वामी तर्ज के फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह कर दिया। मैं ये चाहूँगा कि हम सैर व तफरी के लिए कराची से बाहर जाते हैं, क्यों ना कराची शहर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। तो आपको इन जगहों को बेहतर बनाना होगा, इन जगहों को इम्प्रूव करना होगा ताकि बच्चे आ सके, एंजॉय कर सके। आर्ट बॉक्स पर मुश्तमिल एक्वेरियम को 26 इकसाम की खूबसूरत मछलियों का मस्कन बनाया गया है। तालिबात ने एक्वेरियम का दौरा किया और मिली नगमे भी गाए। 8 साल बाद दोबारा फाल होने वाले एक्वेरियम को देखने के लिए शहरियों को 50 रुपए का टिकट खरीदना होगा। कैमरामैन अली जाफरी के साथ असगर अजीम, GTV, कराची।